Rediscovery is a skills-based education platform जहाँ पे we work as a bridge and connect the coaches and learners. अच्छा, यहाँ पे ना I'm using this word learner. पता है क्यों? Because anyone without any age boundaries can join this platform and be a learner again. Yes, the only thing that is required is that passion to master the skill. And हाँ, इस bridge को और भी strong बनाने के लिए we provide courses in various languages. You can explore these courses on our website. But हाँ, यहाँ पे जो है we are for this webinar with our trainer Manoj sir. So I'll give you a very quick introduction of Manoj sir. Manoj sir जो है he is one of the most experienced trainers in skills rediscovery and with over 33 years of experience in engineering and manufacturing companies. He started his journey as a corporate trainer in June 2020 in the domain of MS Office, that is MS Excel, MS Word and PowerPoint. और यहाँ पे आज हम लोग मिले हैं for this MS Excel basic to advanced. Well, it is now time to hear from Manoj sir. So yes, over to you, sir. Thank you. Friends, good morning. Myself, Manoj Chakravarti, having 33 years of experience, as rightly Krishna has said, into multiple industry segments, and since last June 2020, I have started my corporate, you can say, as a trainer. Earlier, I was as an AGM IT with one of the good companies, and good hold on all the ERPs. So what I want to share with you is, as you all are beginners and technologically challenged with the purely beginner, yes, definitely you all are beginners and will take care of your beginning point. Sir, tell me, आपको कितनों को Excel लोड करना नहीं आता? How to start Excel? Do you know, girl, how to start Excel, or that also you don't know? Oh, sir, I don't know. Okay, fair enough. That is the spirit of learning. The moment you become transparent to me, you will learn more. Okay. Sunita, the same is the case with you, as you are technologically challenged. So I say you both are in the same boat, and rest are not speaking out. So I consider them also in the same. Okay. So when you want to start your Excel, you have this small window type thing over here in the taskbar. Type here to search. There you just write Excel. And as soon as you write Excel, you will get this type of thing written over here. Whichever Excel version you are having will be seen here. Okay. Just click on that. Just click on that and you will be having one file. Now let me share my screen. You might not be seeing anything. Okay, let me share the screen. Okay, so what I have taught you, the moment you don't know how to start Excel, you just type in here Excel. Okay, as soon as you press EXE, this will come. Click on this and the screen will open like this. And I will make everything open for you. Okay, it will look like this. Okay, now this is called your Excel sheet. Fine. अब ये Excel sheet है क्या? सब चुपटे बने हुए ना, स्क्वायर है, जो मैथमेटिक्स की नोटबुक हुआ करती थी बचपन में. हम मैथमेटिक्स इसमें लिखते थे, एक खाने में एक नंबर लिखते थे, फिर उसको प्लस लिखते थे, माइनस करते थे. भैया सब कुछ वही है इसमें, कुछ भी नया नहीं. खाली माइक्रोसॉफ्ट एक इंटेलिजेंट बंदा है, उसने इसको इतना बढ़िया से प्रेजेंट कर दिया चीजों को, ताकि हमारी लाइफ इजी कर दी. एंड अलॉन्ग विद दैट it has made us so comfortable with the application that you don't use your brain, you keep your brain always free to think something new. और जो कुछ करवाना है इससे करवाओ, ये करके देगा. ठीक है, तो एक्सेल एक हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है. Wherever you go, whenever you go, till you die, Excel will be with you. Without Excel,
you cannot move in this competitive market because all the analytics what we are going to do, कुछ भी आपको जानना है, किसी भी फॉर्म में देखना है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देखना है, कैसे भी देखना है, डायमेंशनल रिपोर्ट्स you can get it through Excel. Now, जब ये इतना सारा खुल गया तो आपको लगेगा यार इतना सब क्या भर रखा है, क्या कौन पढ़ेगा इसको, ठीक है? Initially everything looks like that only, and once you start working on that, it becomes very simple. Okay, so how to make the things simple? Now you see, यहाँ पर कुछ ABCD up to and so on दिख रहा है. इसको क्या बोलते हैं? Every column, this is called your column. These all are columns. How many columns are there? How many rows are there? That is immaterial. हम जब नोटबुक लेने जाते हैं बाजार में, हम क्या बोलते हैं? 100 पेज की बुक दे दे, 200 पेज की बुक दे दे, ठीक है? उसके अंदर हर पेज पे कितनी कॉलम्स हैं, कितनी रोज हमने कभी गिनी ही नहीं, ठीक है? हम काम करते जाते हैं, जितना चाहिए उतना हम यूज करते जाते हैं. Similarly, in Excel sheet also, you just keep on using. You will never get shortage of these cells. It will keep on coming till you want. Okay, there is no limit. आपके सोच से ज्यादा उसके पास माल पड़ा है, ठीक है? Now you see, this is your column, and these 1, 2, 3, 4, these all are your rows. Okay? और Excel में क्या होता है कि जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब जैसे हमारे रोड के ऊपर चौराहा होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? 4 लाइनें इंटरसेक्ट हुई है. सिमिलरली यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है, दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड योर सेल. ओके, इसको हमको सेल बोला जाता है. अब मैं आपको इसको इसमें दिखाता हूँ. ऑफिशियली इज दिस वन. ओके, सो दिस इज व्हाट I have taught you right now. Let me go like this. Okay, let me go like this. Now here you see. This is your column. This is your row. And intersection of row and column is your cell. Is this clear to all of you? What is cell? Yes. Please speak out. Yes, sir. Good. Now, if this is clear, then you are eligible to start working on Excel. Because अगर इतना आता है तो आपको यह पता है कि यूनिट का नाम क्या है, रो का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है. If this much is clear, now everything is having their own identity. जैसे अभी हम हमारे यहाँ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देखने जाएं तो only मनोज चक्रवर्ती and Garv are visible on the screen. So I can say, yes, Garv is there on my screen. I can identify Ayushi is there on the screen, but without picture on that. Okay, Anchal is there, Sunita is there, Khushbu is there, Lokesh is there. So these all are what? Every block is a cell. Every block is a cell. Pranjal is there. The Pranjal is also one cell. And what is the cell address for Pranjal? Is Pranjal one cell. What is the address for Ketan? Is Ketan. Okay, then Lokesh and so on. So here also we are having rows and columns. Similarly, this is the row, this is the column, and intersection of this is a cell. And how to identify who is Pranjal or who is Khushbu from the cell, and that is called your cell address. Okay, that is called your cell address. And this is your cell address. Okay, now where that cell address is seen? यहाँ पर तो आपको फोटो के नीचे नाम दिख रहा है, ठीक है? अब फोटो के नीचे नाम दिख रहा है, you can identify. पर इसका नाम कहाँ दिख रहा है? So that name is seen over here. That is C3. C3 is the cell address for this particular cell. If I click here, then it becomes Z3. What is that? Z is the column, third is the row. So this is the Z3. Is this clear to all of you? How to see what is the cell address, what is cell, what is row, what is the cell address? Is it understood by all of you? Fine. Yes, sir. Now I will take a small quiz. Friends, किसी को इंग्लिश में तो प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हिंदी में बताता हूँ कि कोई शर्म मत करना बोलने में कि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही. I am totally flexible. Okay, I want to make you learn. चाहे हम 1 घंटे में 2 पॉइंट सीखें या 50 पॉइंट सीखें, बट जितना सीखोगे वो आपका आज का
टेक अवे होना चाहिए कि हम बैठे 1 घंटा संडे को तो खाली हाथ वापस नहीं आए. Keep it in mind. Okay. Now I'll take a small test of yours. Write in the chat box or speak out what is the cell address of this green block. What is the cell address of this? If you want me to increase the size, I will increase the size also. Take. What is the cell address of this? So T4. T4. Very good. All agree to T4? Fine. Now I'll say, what is the cell address of this? So U5. U5. Very good. And what is the cell address for this? V6. Very nice. Very nice. So at least up to this point my training is successful. कि जितना मैंने बोला है उतना आपको समझ में आ गया. Very nice. Now I will go a little ahead. थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं अब इस पॉइंट को भी पूरा हाइड कर देता हूं 1 मिनट के लिए, तो आपको स्क्रीन पे पूरा दिखेगा. ठीक है. Forget about the names what are mentioned on the screen. अपने बचपन को याद करो. हम क्या करते थे? यहाँ पर 100 लिखते थे हमारी ब्लॉक नोटबुक में, फिर हम यहाँ लिखते थे 80 और फिर इन दोनों को माइनस करने के लिए हम क्या करते थे? Subtract 80 from 100. तो हम क्या करते थे? 100 में से 80 को subtract करते थे. कैसे करते थे? 100 minus 80 ऐसा लिखते थे तो 20 आंसर आता था. थोड़े से बहुत एग्जांपल्स हैं, we can do like that. But if there are multiple rows and multiple columns, then इस तरीके से मैन्युअल आप कब तक करते रहोगे? और अगर इस मैन्युअल प्रोसीजर में कल को आपके बॉस ने बोल दिया या आपके टीचर ने बोल दिया, now subtract from 120, what will happen? Nothing will change because यहाँ पे आपने क्या कर रखा है? हार्ड कोड कर रखा है. तो आप जाके यहाँ पर फिर से यहाँ 120 डालोगे और फिर आंसर आएगा. To make this thing flexible, ठीक है, आपको ये चीज फ्लेक्सिबिलिटी में लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बढ़िया काम किया. उसने क्या किया कि उस सेल के एड्रेस के अंदर जो कंटेंट पड़ा है वो उसको उठाता है. अब वो उठाएगा कैसे? तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे? सेल एड्रेस, जो भी हम सीख के आए. तो द सेम थिंग वी आर अप्लाइंग हियर नाउ. अगर हम यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन है वो स्टार्ट होता है इक्वल टू, ठीक है. अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 100 minus 80, what it gives? 20. ठीक है. और आपको मैं साइड में फॉर्मूला भी दिखा रहा हूँ क्या हम कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्वल टू 125 minus 25, this gives you 100 and so on. But this way every cell I have to feed in manually. To overcome this, what Microsoft has provided, he says, don't do that. You give the address of that particular cell, and from that, what you want to subtract, click it on that. You have to just click on that, or you move the cursor. Anything you can do, and click it. Answer वही का वही आया. लेकिन यहाँ पर जो था, यहाँ पर क्या था पहले? Equal to 125 minus 25. It was looking like this. Now it is looking like cell address. जब सेल एड्रेस आ गया means that becomes the container and content is 100 and content is 80. तो अब हम क्या यूज कर रहे हैं? उसी सेल एड्रेस का यूज करके कंटेंट को यूज कर रहे हैं. ठीक है. अगर हमको यही का यही चीज सभी जगह कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर्सर रख के इस कोने पे आएंगे, वहां प्लस साइन दिख रहा है. जैसे प्लस साइन दिख रहा है you just drag it, so it will copy to all. This is one way of doing. Second way of doing is इसको आपने कंट्रोल C किया पर यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया. कंट्रोल C मीन्स कॉपी. जैसे आप कंट्रोल C दबाओगे तो सिलेक्टेड एरिया में ये डॉटेड लाइंस आ जाएंगी और कंट्रोल V करोगे तो वो पेस्ट में आ जाएगा. ठीक है. तो ये आपका हुआ दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस. अगर अब यहाँ पे आपकी टीचर बोलती है तो यहाँ पे आप 150 कर दो, what will happen? Automatically this will change because the address is M5. M5 का कंटेंट आपने चेंज किया, so the result gets changed. यहाँ पे अगर 500 कर देते हो, ये 500 में से माइनस होगा. यहाँ पर अगर आप लिख देते हो 175,
it will come to -25 and so on. Okay, I hope how to do subtraction that is clear to all of you. Yes. Please speak Yes, out. No doubt. अब ये माइनस है, उसकी जगह अगर आप प्लस लिख देते हो, ठीक है, अगर आप उसकी जगह प्लस लिख देते हो तो वो प्लस शुरू हो जाएगा, तो आपका सेकंड ऑपरेशन पूरा हो गया। अगर आप उसके बीच में मल्टीप्लाई साइन डाल देते हो, मतलब स्टार, देन इट इज गिविंग यू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। आपने कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका ऑपरेटर चेंज किया, मैथमेटिकल ऑपरेटर है उसी को चेंज किया है। अगर यही चीज को आप इससे डिवाइड करते हो तो वो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब डिवीजन में है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, उसको हम कैसे लाएंगे? तो ये हमारा होम बटन है, होम बटन के अंदर यहाँ देखो, जो चीज स्क्रीन पे दिख रही है पहले हम उसी को यूज करेंगे, कोई भी ऑप्शन के मेन्यू में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही देख रहे हैं। यहाँ देखो डिक्रीज डेसिमल है या इंक्रीज डेसिमल है, इसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो एक डेसिमल आ जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे दूसरा डेसिमल आ जाएगा, और आगे जाना तीसरा करो, चौथा करो, इट इज अप टू योर रिक्वायरमेंट। आपको कितने डेसिमल तक का प्रिसिशन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, उतने डेसिमल तक आप लेकर जाओ, और अगर पीछे लाना है वापस ले आओ, ठीक है। तो ये आपका हुआ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड इम्पोज द डेसिमल पॉइंट। नाउ अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड की जगह हम इसको मल्टीप्लाई साइन पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन, और हम डिफरेंस की जगह हम लिख देते हैं रिजल्ट, ताकि हम सारे ऑपरेटर इसी के ऊपर यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो आया है, अब ये 36,000 है, एक बार रीडेबल है। अगर मैं इस फिगर को 2000 कर देता हूं, अब क्या हुआ, ये लैक्स में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं इसी को 20,000 कर देता हूं, अब ये आ गया स्टार, ये हैश कैरेक्टर्स आ गए। जब भी आपकी एक्सेल शीट के अंदर कोई भी हैश कैरेक्टर आ जाए तो घबराना नहीं है, समझ जाओ कि उसकी विड्थ जो है उसको कम पड़ रही है। अब वो विड्थ कम पड़ रही है तो वो कैसे बढ़ाएं, ठीक है, उसकी विड्थ कम पड़ रही है, हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से पकड़ के खिसका देंगे इधर, ये बड़ी होगी, वापस लाओगे कम हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना है, बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक कर दो, अपने आप एडजस्ट टू साइज अपने आप कर देगा वो, ठीक है। अगर अब मैं इसके आगे एक और 0 लगा देता हूं, अब क्या हो गया, ये फिगर आ गई, और इसके आगे मैं एक और 0 लगाता हूं, अब क्या हो गया, ये इतनी बड़ी फिगर। नाउ हु विल बी इन अ पोजीशन टू रीड दिस? तो 10 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, इतना तो बड़ा फिगर अपने पैसे कभी जमा ही नहीं हुए इतने जो रीड कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो दैट इज ए ऑप्शन कॉल्ड दिस वन, कॉमा स्टाइल विद 1000 सेपरेटर, ओके। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या लग जाएगा, इसके कॉमा लग जाएंगे। अब हम बोलेंगे भाई 1000 है, लाख है, करोड़ है, 36 करोड़ इतने लाख का ये धंधा हुआ, ठीक है। तो दिस आर द वे हाउ यू कैन। अब यहाँ से आप एक 0 आप कम करते हुए जाओ, ये क्या हो गया, 3 करोड़ 7 लाख हो गया, ठीक है। हम इसके अंदर फिर से जाते हैं और इसका हम 1 0 और कम कर देते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, 36 लाख हो गया। अब इसके अंदर से हम एक और 0 कम कर देते हैं, 3,60,000 हो गया। तो टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी यू कैन यूज द कॉमा सेपरेटर, okay, when the money part comes into picture then comma separator is must, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई, any doubt up to this, how to use plus minus multiply divide and comma separator with decimal, is there any doubt? No, very good now we'll see कि ये जो है, अब आज के जमाने में तो क्या है कि सबको करेंसी सिंबल नया आया तो वो लगाना है, वो बस चाहिए, ठीक है। अगर वो हमको लगाना है तो एडिट टू इट्स एन अमाउंट, हम क्या करेंगे उसके लिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड 4, वो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि वो टेक्निकल हो जाता है। हम क्या करेंगे, वापस इसी सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर ये क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो करेंसी वर्ड दिख रहा है। जैसे आप करेंसी पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये रुपए का साइन आगे लग जाएगा, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूं तो मैं एक जगह पे करेंसी का सिंबल यूज करता हूं, यहाँ पर
यहां पर मैं यूज करूंगा क्या, मैं यहां पर यूज कर लेता हूं ये कंट्रोल शिफ्ट एंड 4, ये भी आ गया, और तीसरे पे जाके अकाउंटिंग में, ठीक है। तो 3 मेरे अलग अलग फॉर्मेट में रुपीस आ गया। अब कंट्रोल शिफ्ट एंड 4 और करेंसी बोथ गिव्स मी द आउटपुट लाइक दिस, के रुपए एक्स बेस छोड़ के डॉलर साइन लगता है, ओके, या रुपये का साइन लगता है। बट व्हेन यू गो विद द अकाउंटिंग सेट ऑफ स्टाइल, फॉर्मेटिंग स्टाइल, देन इट विल बी एट द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। अब यहाँ पर है, यहाँ पे आपने इसको भी आपने अकाउंटिंग में जाके क्लिक कर दिया, और ये ठीक है। सो यू नो द डिफरेंस कि आपको किस टाइप का फॉर्मेटिंग चाहिए, वो यहाँ से आपको दिख रहा है। फाइन। सो नाउ यू आर फेमिलियर विद रो, कॉलम, सेल, सेल एड्रेस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड योर करेंसी सिंबल विद डेसिमल एंड विद कॉमा सेपरेटर। इतना आप लोग सीखे, इसमें कोई भी चीज नवी नहीं है जो आपकी 10th 12th की स्टडीज से पहले ये नहीं सीखते हो, सब कुछ आप बचपन में सीख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने उसी चीज को एक्सेल के फॉर्म में देखा कि हाउ वी आर यूजिंग इन एक्सेल एंड मेक्स आवर लाइफ इजी। जो आप चाहो, आप जो भी चाहो इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई फॉर्मेट कॉपी करना होता है, ठीक है, कि मुझे ये वाला ग्रीन कलर है, यही ग्रीन कलर मुझे इसके ऊपर भी चाहिए, ठीक है। अब यही का ये ग्रीन कलर मैं यहाँ पर कैसे लाऊं, मुझे पता नहीं कहाँ पर पड़ा है, क्या पड़ा है, ठीक है। तो इन दैट केस सपोज यहाँ पर ये है, पर मैं इसको एक बार के लिए ग्रीन करता हूँ, यहाँ पर आ, ये मैं लेता हूँ दूसरा कलर, ये ब्लू ले लेता हूँ सपोज। अब ये कलर मुझे यहाँ पर लाना है, हाउ आई विल ब्रिंग दैट कलर टू दिस पॉइंट, व्हाट विल्स, यहाँ पर लाए, हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे, अब क्या हुआ, ये फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया, यहाँ पर कौन सा था फॉर्मेट, इसका जनरल फॉर्मेट था, तो ये सारा का सारा जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब अगर हम इसको भी अकाउंटिंग फॉर्मेट में डाल देते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर लगाते हैं, ये क्या हो गया, सारा का सारा अकाउंटिंग फॉर्मेट विद आ गया। अब यहाँ पर भी अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, उसके आगे भी हुई यार यही का यही फॉर्मेट विद कलर विद एवरीथिंग, आई एम कॉपिंग इट टू दिस वन। तो ये क्या हुआ आपका फॉर्मेट पेंटिंग। फॉर्मेट पेंटिंग मींस एज इट इज इट विल बी गेटिंग कॉपीड विदाउट वैल्यू, विदाउट वैल्यू, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक का। नाउ एज यू ऑल आर बिगिनर्स, हम इसी चीज को वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में छोड़ देते हैं, नो फील्ड में, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट। अब इसकी जो बॉर्डर लाइन है ये चली गई, अब इसकी बॉर्डर लाइन चली गई, तो बॉर्डर लाइन हम कहां से लाएंगे, फॉर दैट वी हैव बॉर्डर्स। इतने सारे टाइप की बॉर्डर्स आप डाल सकते हो। अभी हमको कौन सा बॉर्डर चाहिए, सपोज ऑल बॉर्डर, सिंगल लाइन, जब हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया तो हमारे बॉर्डर की लाइन बन गई, ओके। नाउ इफ यू वांट टू मेक दिस थिंग बोल्ड, अगर आप उसको डार्क करना चाहते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज बोल्ड, यहाँ लिखता हूँ इटैलिक, यहाँ लिखता हूँ अंडरलाइन, ओके, और यहाँ लिखता हूँ डबल अंडरलाइन, ओके, दिस इज माय डबल अंडरलाइन। नाउ हाउ टू do what I have written here if I want to make this bold। तो अभी हम ऑफिशियल स्कूल में क्या करते हैं, कोई डाटा लिखना है उसको या तो डबल बार पेन घुमाते हैं या उसको ब्लैक इंक से लिख लेते हैं ताकि वो थोड़ा अलग दिखे, ठीक है। तो वो अलग दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, हियर यू हैव व्हाट फॉन्ट, ये क्या है, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली के अंदर क्या क्या है, बोल्ड है, इसको हमने क्लिक किया, ये बोल्ड हो, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ लाके इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो गया, यहाँ जाके हम इसको अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन आ गया। अब आई बात डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन मतलब 2 बार अंडरलाइन पे क्लिक कर दोगे तो नहीं आएगा, जैसे हम पेन पेपर पे करते हैं, एक बार लाइन खींचिए उसके बाद दूसरी लाइन खींच दी, वो फिजिकल पॉसिबल है, बट यहाँ पर एक ही अंडरलाइन को 2 बार लिखो नीचे, वो पॉसिबल नहीं है। तो हाउ टू मेक दैट, यहाँ पे क्लिक किया। अब जहां पर आपको ये वाला पॉइंट दिखता है डाउन एरो की वाला, मतलब उसके अंदर कुछ और है,
वो आपको देखना है। इसके नीचे कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसके नीचे ऑप्शन नहीं, इसके नीचे ऑप्शन है। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन दिस, तो हियर यू विल सी डबल लाइन। अब यहाँ पे क्लिक किया थी आपकी डबल अंडरलाइन है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन। ओके, सो अप टू दिस एनी डाउट्स? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Fine. So I hope we are going in a very slow fashion and you are understanding it. That I am taking it as guaranteed. Okay. And if there is any doubt up to this point, feel free to stop me in between, unmute yourself and say, sir, यहाँ रुको, हमको नहीं समझना है. I will repeat the same thing 10 times, I don't mind. But जितना हम आज सीखेंगे, उतना आप अगर घर पे ट्राई करो तो आपको आना चाहिए. Okay. Otherwise, it's an insult to me and to my training passion. Okay, I want everyone to learn in depth, but the foundation stone should be laid very strong. अगर foundation गलत रखी गई, पूरी building सारी जिंदगी हिलती रहेगी आपकी. I want you to be very strong fundamentally and conceptually. आप कोई भी चीज क्यों यूज कर रहे हो, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होनी चाहिए. एक्सेल में कुछ नहीं है दोस्तों, एक्सेल में आपको 3 घंटे में भी सिखा सकता हूँ, बट आपका जो धगस्त है, अंदर का जुनून है, वो सीखने वाला होना चाहिए. मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है? तो एक्सेल इज अ वेरी गुड थिंग. लव एक्सेल एंड इट विल ब्रिंग यू फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ओनली बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच मेक्स डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स. आई से more than 80% people doesn't know Excel in this country, rather in this world. 80% लोगों को एक्सेल नहीं आता. लोग कितना सीखते हैं, जितना उनके कंफर्ट जोन में आता है, by which they are comfortable, they use. And this is not only with Excel, this applies to everything. You just check it, your mobile. आप हर 2 साल में, 1 साल में कोई वर्जन नवा आ गया, कोई चीज नवी आ गई, नया मोबाइल चेंज कर लेते हो. बट एट द एंड उसमें यूज क्या करते हो? Facebook, Instagram, your WhatsApp, and if you are professional, then LinkedIn. That's it. चैटिंग भी नहीं करते हैं, मैसेज के बाद आजकल चैटिंग भी आप WhatsApp पे करते हो, कॉलिंग उस पे करते हो. अंदर मेन्यू में जाके देखोगे तो हर एक मेन्यू के अंदर कितने बड़े बड़े सारे अंदर और ऑप्शन होते हैं, बट हम नहीं यूज करते. क्यों? वो हमारे जरूरत के नहीं है. जरूरत के हैं बॉस, हमने कभी उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी. अगर उसको एक्सप्लोर करोगे, लाइफ और इजी होती जाएगी. सो मेक योरसेल्फ टेक्नो सेवी. ओके, देन ओनली यू विल फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ओके, एंड दिस इज माय कंसर्न विद ऑल ऑफ यू. चाहे आज 8 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, आई डोंट माइंड, बट ऑल शुड गेट समथिंग आउट ऑफ दिस 1 hour सेशन. ओके, नाउ ये नीचे का पार्ट है, मैं नहीं दिखा रहा आपको क्योंकि वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं यहाँ तक इसको आपको सीमित कर रहा हूँ. फाइन. अब मैं एकदम सिंपल चीज पे लेके जाता हूँ आपको. ये जो आपने लिखा, ये आपका सारा का सारा लेफ्ट अलाइन. अगर मुझे ये चीज सेंटर में चाहिए तो लोग क्या करते हैं, इसके आगे वो लगा देते हैं स्पेस बार, ऐसे करके वो सेंटर में ले आते हैं. बॉस ऐसा कभी मत करना जिंदगी में. Put you in a very difficult situation. Whenever you want this in center, just click it on this point. Center your content. Click किया, center में आ गया. इसको अगर आपको लेफ्ट अलाइन रखना है, ये लेफ्ट अलाइन है, अलाइन लेफ्ट, वहीं रहने दो. यहाँ पर है, आपको राइट अलाइन करना है, यहाँ पे अलाइन राइट है, ये अलाइन राइट हो गया. ठीक है. और इस सेल का मैं सभी का मैं सेल का जो हाइट है मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ. सेल हाइट को मैं सपोज एक बार के लिए 35 करता हूँ. ठीक है, दिस इज माय सेल हाइट. ओके, मैं सेल की हाइट बढ़ा सकता हूँ, कॉलम की विड्थ बढ़ा सकता हूँ. एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल. आइदर यू डू फिजिकली लाइक दिस, ड्रैगिंग इट लाइक दिस, और यू गो बाय रो हाइट एंड कॉलम हाइट. ओके, एनीथिंग यू कैन डू. डायमेंशनली अगर आपको फिक्स चाहिए, 20 का चाहिए, 30 का चाहिए, देन यू गो बाय दैट मेथड. इफ यू वांट, ओके, जितना मेरा जरूरत है उतना आपका प्लस माइनस हो जाए, यू कैन गो बाय ड्रैगिंग. नाउ ये है. अब इस चीज को मुझे राइट अलाइन नहीं, बट मुझे सेंटर चाहिए, तो मैंने सेंटर कर दिया. और ये अभी क्या है, सेंटर में. अगर मुझे इसको टॉप अलाइन करना है, अगर इसको मुझे टॉप अलाइन करना है, व्हाट आई विल डू,
आई क्लिक इट ऑन हियर, तो वो टॉप अलाइन हो गया। टॉप अलाइन में मुझे लेफ्ट करना है, मैंने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, अभी इस चीज को मुझे सेंटर में करना है और ये सेंटर लाइन में करना है। इस चीज को मुझे राइट अलाइन करना है लेकिन नीचे करना है। सो बोल्ड एट द टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर, सेंटर एंड इन द राइट। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन। अभी इसके अंदर अगर मुझे इसको थोड़ा सा एंगल देना है, एंगल देना तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप इसको ओरिएंटेशन दे सकते। यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन कन्वर्ट लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन कन्वर्ट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, एनीथिंग यू वांट you can do. You have to play with your Excel. You have to play with your Excel. Excel will never say no. It will give you more and more options to explore. Fine. अब कोई नाम है, सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं कि मनोज कुमार प्रेमनाथ चक्रवर्ती। ठीक है, इतना बड़ा मेरा नाम है और मैंने इसको इतनी जगह दे रहा है। अब क्या हुआ, अगर ये मेरा एरिया खाली होता यहाँ का, ठीक है, तो ये नाम आगे चढ़ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, अगर ये भी खाली होता तो ये और आगे आ जाता, तो मेरा नाम कैसा दिखता है? सर, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, अब इस चीज को हमको अगर इसी सेल में सेट करना है तो क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे सर छोटा कर दो। ठीक है, छोटा कर दो। छोटा इज नॉट अ सॉल्यूशन। आई वांट फुल नेम। व्हाट वी कैन डू, click on this and there is an option called cell width. Yes, you can go with cell width, that is fine, but we have limitation कि हमको cell width भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आगे बहुत सारे कॉलम और भी लेने हैं। ठीक है, say for example एड्रेस, एड्रेस में किसी का छोटा सा एड्रेस है, वो सेक्टर 16 NIT फरीदाबाद, कितना सा एड्रेस है तो वो तो छोटे में आ जाएगा। अगर कोई साउथ का एड्रेस है, उसमें बाप के नाम के साथ गांव का नाम भी लिखते हैं, शहर का भी नाम लिखते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है और एड्रेस भी उनका बड़ा बड़ा होता है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू विल फेस प्रॉब्लम कि कितनी कॉलम विड्थ रखें, अगेन इट विल मेक यू अ प्रॉब्लम। इस केस में आप क्या करो, इसकी आप कॉलम विड्थ सपोज सेट करते कि भाई इतनी कॉलम विड्थ में मेरा एड्रेस आना चाहिए। सो हियर व्हाट यू कैन डू, दैट इज अ रैप टेक्स्ट। ओके, वंस यू गिव अ रैप टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली द rest of the content will go on the next line. Okay, अगर हम इसको और छोटा करते हैं और छोटा करते हैं और नीचे चला गया, अब इसको आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए ऐसा। ठीक है, अब इसको और भी छोटा करते हो तो ये ऐसा हो जाएगा। सो इट इज रैप टेक्स्ट। तो इस केस में सब कुछ आपका ऑटोमेट हो जाता है। अगर आप कॉलम की विड्थ बढ़ाते हो अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, और घटाते हो तो अपने आप वो अगले लाइन में। ठीक है, that is your wrap text. Now, next is how to merge cells. Okay, merge cells क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियों का मर्जर होता है। सिमिलरली यहाँ भी हमारा हर सेल एक कंपनी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो if you want to merge the cells, okay, अब मैं ये यहाँ दिखाता हूँ आपको। सपोज ये एक सेल है, मैं लिख रहा हूँ सेल 01। ओके, नाउ सेल 01 हमने यहाँ लिखा। अब मुझे इसी को नीचे मैंने ड्रैग कर दिया तो मेरा सेल 1 2 3 4 लिखा हुआ आ गया, बिकॉज व्हेनेवर यू ड्रैग इट ऑटोमेटिकली नंबर गेट्स इंक्रीमेंटेड। ओके, ये आपका सेल 1 2 3 4 लिखा हुआ आ गया। अब मुझे ये सेल को 3 को मर्ज करना है, तो ये मैंने यहाँ से मर्ज किया। इफ आई वांट टू मर्ज ऑल द सेल्स लाइक दिस, जैसे मैंने 1 का किया, और अगर बाय मिस्टेक मैंने इसको वही कंडीशन से मैंने यहाँ पे कर दिया तो क्या होगा, ये मर्ज तो कर देगा लेकिन जो फर्स्ट सेल की एंट्री है वही दिखेगी, बाकी की मेरी एंट्री को छोड़ देगा क्योंकि वो बोलता तुमने मर्ज किया है। तो फर्स्ट सेल आपका गया तो ओनली सेकंड सेल में जो 002 लिखा हुआ था वो आपका दिख गया 34 है, क्या है। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू वांट टू रिपीट अ मर्ज बट मल्टीपल रोज में करना है, तो आपने यहाँ क्या पूरे को सिलेक्ट कर लिया। अब अगेन मर्ज के अंदर यहाँ एक छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो।
जब भी आपका नीचे ट्राइंगुलर दिख रहा है मतलब उसके ऑप्शंस आपको चेक करने हैं, एंड इट्स अ वर्क ऑफ पेशेंस, यू हैव टू डू वंस, एंड वंस यू आर थ्रू विद दैट यू विल फील एवरीथिंग इज बाय हार्टेड कि कहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ देखो, एक है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, जो अभी हमने पहले किया ब्लॉक सब ब्लॉक हो गया था। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर अक्रॉस में ये क्लिक किया और ये ओके किया, अभी भी वही हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, मर्ज सेल्स कर रहे हैं। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं मर्ज अक्रॉस, ओके। ये हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेल्स को एक साथ भी मर्ज कर सकते हो, बट इन दैट केस डोंट यूज मर्ज इन सेंटर, यूज मर्ज अक्रॉस। ये मर्ज अक्रॉस वाला जो ऑप्शन है वो सेकंड नंबर पे, इसलिए आपको यहाँ दिखता कौन सा है, फर्स्ट वाला। बाकी के ऑप्शंस नीचे अवेलेबल हैं, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सेम इसको अनमर्ज करना है, आप जाके अनमर्ज कर दो, अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज दिस। तो अभी हमने क्या किया कि ये हमने कर लिया अनमर्ज, ठीक है, और इसको भी हमने अनमर्ज कर दिया, सॉरी हाँ, और हमने इसको भी अनमर्ज कर दिया, ठीक है। ये अनमर्ज हो गए। अब हम क्या करते हैं, देखो फॉन्ट वाला इलाका हमने पकड़ा था, हमने ये सारे ऑप्शंस देख लिए, ठीक है। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई भी कलर चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करो और उसका कलर चेंज कर लो, फॉन्ट के कलर का, मतलब किस टेक्स्ट का किस कलर का मोड क्या करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया। इसका अगर बैकग्राउंड देना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ गए, जो भी कलर आपको लेना है आप इसको ले सकते हो, जो भी कलर लेना है यू कैन टेक इट, ठीक, एनीथिंग यू कैन डू, एनीथिंग, देयर इज नो रूल, दैट इज योर रिक्वायरमेंट एंड हाउ यू आर गुड इन कलर मैचिंग यू कैन यूज, ओके। अब हम इसको सेल का एड्रेस वो देना चाहते हैं, बॉर्डर, हमने यहाँ से बॉर्डर, फाइन। अगर ये बॉर्डर्स को डार्क करना है तो नोटबुक में हम 2 बार पेन घुमा देंगे, इसमें 2 बार तो पेन नहीं घूम सकता, तो इन दैट केस यू हैव एन ऑप्शन, ओके। ये आपने कर दिया, ये आपका डार्क बॉर्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके पूरी एक्सेल शीट के कंटेंट को डेकोरेट कर सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कर सकते हो, और हर एक का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी कलर कोड से अगर आप आइडेंटिफाई करके दिखाना चाह सकते हो, दिखा सकते हो, फाइन। नाउ अगर इसका हमको चेंज करना है साइज, तो यहाँ पर है, इससे आप इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है, और इससे आपको डिक्रीज फॉन्ट साइज, आप इससे भी कर सकते हो। सेम चीज यहाँ से भी कर सकते हो, आपको जो फॉन्ट साइज चाहिए आप यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हो। सेम इफ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट, तो देयर आर लिस्ट ऑफ फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। सपोज मैंने ये लिया, ये हो गया, इसका मैंने ब्लू कलर कर दिया, बैकग्राउंड में मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ इसको मुझे इटैलिक करना है, आई कैन डू इट इटैलिक, आई वांट टू इंक्रीज द साइज, एनीथिंग आई विश आई कैन प्ले अराउंड विद, ओके। सो फॉन्ट एरिया वी हैव कंप्लीटली लर्न राइट नाउ, फॉन्ट एरिया वी हैव कंप्लीटली लर्न, अलाइनमेंट हमने पूरा सीख लिया, ठीक है, नंबर हमने सीख लिया। तो आपका मैंने होम की के 3 टैब पूरे कर डाले, ठीक है, विच आर रियली रिक्वायर्ड बाय फ्यू पीपल। नाउ फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पे हमने सीख लिया। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज योर क्लिपबोर्ड। Have you heard about clipboard? Anyone? Have you heard about clipboard? Anyone? So वहाँ से हम लोग कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी फ्रंट को कॉपी करना है या कुछ मतलब कॉपी या कुछ करेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं सर। Very good, very good. Who has answered the question? सर मनोज कुमार गुप्ता सर। मनोज कुमार गुप्ता। Now आपने जो क्लिपबोर्ड का जवाब किया है, let others learn and hopefully you will also learn out of that what I am going to show you right now. Okay? Now let's see. Suppose करो मैं यहाँ पे नवी फाइल ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है, नवी शीट ले ली। अब यहाँ पर आए इधर, ठीक है,
यहाँ पे मैंने लिखा मनोज, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा skills rediscovered. Okay, these two things I have written, and here I am writing student 01 and dragging it down. Okay, ये मेरे स्टूडेंट्स होगा, ये मेरा एक छोटा सा डेटा मैंने बना लिया, ठीक है, this is my data. Okay, this is the data. Now if I click on this clipboard, तो ये मेरा clipboard ओपन हो गया, ठीक है। अब इसका clipboard का फायदा देखो, if I say Control C, जैसे मैं यहाँ Control C दबाऊंगा ये यहाँ आ गया, और मुझे ये मनोज पे यहाँ कॉपी करना है, मैंने ये कॉपी कर दिया, ओके, यहाँ मैंने कॉपी कर दिया, और फिर मैं इसको यहाँ पे Control C करता हूँ, और यहाँ पे मैंने Control D कर दिया, ये मेरा दूसरा स्टूडेंट 1 आ गया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे किया Control C, और यहाँ पे मैंने स्किल डिस्कवरी को कॉपी कर दिया। Now what will happen? ये मैंने कर दिया। अगर अब मुझे फिर से मनोज यहाँ कॉपी करना है, क्या होगा? इन जनरल व्हाट पीपल डू, वापस यहाँ पे Control C करते हैं और यहाँ पे लाके फिर से उसको पेस्ट करते हैं। बट जब आपका ये क्लिपबोर्ड खुला है, इन दैट केस आपको क्या कॉपी करना है, जस्ट उस पर जाके क्लिक करो। आपको यहाँ पर ये कॉपी करना है, ये कॉपी कर दिया, आपको यहाँ पर ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना है, एंड सो ऑन। इफ यू वांट टू कॉपी ऑल, यू कैन से पेस्ट ऑल, सारे के सारे पेस्ट, ठीक है। सो दिस विल बिकम योर बैकअप or copy wherever you want to copy, whenever you want to copy, and not only in Excel, you can do the same thing with the PowerPoint and Word. The content of clipboard is shareable between all the three. तो अगर आपने यहाँ पे कुछ रखा है तो दूसरे तीसरे में भी आपको वो मिलेगा, आपको फिर से कोई प्रोसीजर नहीं करनी, it is automatically get connected to that also. अगर मैं यही चीज अब यहाँ पे MS Word खोलता हूँ, सपोज ये मैंने यहाँ वर्ड खोला, ठीक है, और यहाँ के मैं सपोज एक ब्लैंक शीट खोल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्लिपबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, सेम थिंग इज अवेलेबल टू मी हियर आल्सो, ठीक है। एंड इट इज नॉट ओनली दिस, इफ आई ओपन समथिंग इन वेबसाइट, अगर ये वेबसाइट है और वेबसाइट में से मैं यहाँ से इसको कॉपी किया हूँ Control C, और अब मैं वर्ड में जा रहा हूँ तो मेरे को वो भी वहां मिलेगा, and I can click it over here and that also I will get. So it is totally integrated and you can make use of things like anything. जैसा चाहो इसको आप चाहो यूज कर सकते। Is this clear to all of you? कि how to use clipboard? Is this clear to all of you? How to use clipboard? Okay. तो आपने आज क्या क्या सीख लिया? होम टैब तो ऑलमोस्ट पूरे सीख लिया। आपने ये सीखा, आपने ये सीखा, आपने ये सीख लिया, नंबरिंग सीख लिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन से इट्स अ बेसिक्स टू स्टार्ट विद। मिनिमम अगर आपको इतना आता है ना तो आप एटलीस्ट एक्सेल में कुछ भी जुगाड़ लगा के कुछ आगे बढ़ा सकते हो। इतना तो मिनिमम आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एक लास्ट पॉइंट सिखाऊंगा, उसके बाद मैं मेरा सेशन बंद करूंगा एंड विल गिव चांस टू खुशबू, ओके। I'm just taking only one more point and we'll stop here, and that is your flash fill. ये बहुत अच्छी चीज है जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, एक्सेल आता है नहीं आता उसकी टेंशन नहीं करनी। अब यहाँ देखो, ये सपोज नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और आपको बोला गया कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम अलग अलग करके दो, पर आपको एक्सेल आता नहीं है तो आपको नहीं पता कौन सा फंक्शन लगेगा, कैसे निकालूंगा। आप क्या कर दो, आप सिर्फ पैटर्न लिख दो, यू जस्ट गिव द पैटर्न टू एक्सेल। ये मेरे को फर्स्ट नेम में ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस Control E, दैट्स इट, योर जॉब इज ओवर। आपने कोई एक्सेल का कोई नॉलेज यूज नहीं किया, सिर्फ एक कमांड यूज किया, दैट इज Control E, दिस वन, ओके, एंड यू हैव पोस्टेड विद दिस वन। नाउ सपोज आपको मिडिल नेम चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिडिल नेम, ठीक है।
अब दूसरा इसमें केयर करना है कि ये वाले मिडिल नेम में मेरे पास स्मॉल के है, बट मुझे कैपिटल के चाहिए यहाँ पर भी, तो मैंने उसको पैटर्न दिया कि कैपिटल जो है जिसमें वो मैंने ले लिया, एंड आई प्रेस एंटर एंड जस्ट गिव कंट्रोल ई, ऑटोमेटिकली द सिस्टम हैज टेकन केयर फॉर द मिडिल नेम. एंड इन द थर्ड केस हियर यू सी, यह चक्रवर्ती का सी जो है वो स्मॉल में, आई विल से आई वांट दैट इन कैपिटल, रेस्ट सिस्टम शुड टेक केयर. आप कहीं पर भी कोई भी एंट्री डालो, प्रेस कंट्रोल ई, ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय द सिस्टम. नाउ सपोज आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, कॉलेज के जीएस हो, कोई भी हो, या एचआर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव हो या हेड हो, अगर आपको मैनेजमेंट बोलती है कि हमको सभी का उनके पर्सनल डोमेन के साथ फर्स्ट नेम का ईमेल आईडी बनवाना है, तो आप क्या करोगे? सबका लिखने बैठोगे, पागल हो जाओगे. इन दैट केस व्हाट यू टू डू, रेखा लिखो यहाँ पर, फर्स्ट नेम @ डालो और यहाँ gmail.com लिख दिया. ठीक है. नाउ योर टास्क इज ओवर. पैटर्न यू हैव गिवन टू द एक्सेल, आपने ये लिखा, उसके बाद जस्ट प्रेस कंट्रोल की, ऑटोमेटिकली सारे के सारे ईमेल आईडी आपके लिए सेव. एंड फ्लैश फिल इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट डिफाइन द पैटर्न, rest of the things will be taken care by the system, and that too उसमें भी ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आपको पहले एड्रेस से ही लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने पैटर्न दे दिया उसको, ये वाला. ठीक है, go.in, ये मैंने पैटर्न दे दिया. अब मैं जो लास्ट रो पर हूँ, कंट्रोल ही दे दो, अपने आप ऊपर कवर देगा. Okay, so this is the way, my friends. I tried my level best to make you fall in love with Excel, so that you can think कि Excel की कितनी पावर. अभी तो मैंने आपको Excel के अंदर तो गया ही नहीं मैं, जो बाहर दिख रहा है वही दिख रहा है, बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो जो दिख रहे थे बाहर उन्हीं को हमने पकड़ लिया. ऐसे हरेक के अंदर अपने अपने ऑप्शंस हैं, हरेक के अपने अपने ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं हरेक के, उनके अंदर और सब ऑप्शंस हैं. So there is, you can say it's an ocean. Excel is an ocean. Nobody can learn in just 45 minutes, but rest assured, Excel क्या है और उसकी ताकत क्या है, उसका एक छोटा सा ट्रेलर आपने आज देख लिया. I hope you all agree with me and you might have enjoyed the session. Khushbu, now the diet is for you. Take care. Thank you so much, sir, for this wonderful session. I hope sabhi ne enjoy kiya hi hoga. और you know, like इतनी simple language में you shared a lot of insights and एक basic idea दे दिया कि you know how this MS Excel is actually like how this MS Excel functions. और I think you know हम सबको पता ही है कि MS Office जो है, and today we were talking about MS Excel. तो ये जो skills है, it is actually becoming a highly demanding skill. And sir, since you are an expert, like आप काफी experienced हो और इतने अच्छे से हमें insights देने के लिए we are very thankful. Also, you know, we must have observed कि whenever you are going through a job description or you know anything, mostly सभी के लिए the desired candidate should be proficient in MS Office, and this is the most common requirement. Or in fact ये this is very important. So like even if you are a student ना, तो MS Office obviously helps you stay organized, and it also develops the skills that are required when you enter a professional world. So दोस्तों, हमें ये तो पता चल ही गया कि you know ये कितना important है. So उसके लिए thank you so much sir, and I really hope हम सब ने बहुत enjoy किया होगा. मुझे तो बहुत मजा आया. So that was it. I hope you guys enjoyed, and thank you everybody who joined, and I really hope you had a great time.